بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ جراوالا کی مسیحی برادری کے دکھ بانٹنے پاکستان کے سارے بڑے رہنماؤں ان کی دہلیز پر پہنچ گئے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، گورنر بلیغ الرحمان، وزیر اعلیٰ محسن نقوی، چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب نے اپنی مسیحی برادری کو گلے لگایا۔ وزیر اعظم نے متاثرین میں امدادی چیک بھی تقسیم کیے۔ مسیحی برادری سے اظہار یکجہتی کے لیے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے جراوالا کا دورہ کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی اور گورنر بلیغ الرحمان نے استقبال کیا۔ نگراں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور گورنر نے متاثرین میں امدادی چیک تقسیم کیے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ انتہا پسندی کا کسی مذہب، زبان یا علاقے سے کوئی تعلق نہیں۔ نفرت پر مبنی سانحے پر دکھی ہوں۔ ہر شہری کا تحفظ یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ میری ذاتی رائے میں اس کا نہ کسی مذہب سے تعلق ہے، نہ کسی دین سے تعلق ہے، نہ کسی نسل سے تعلق ہے، نہ کسی زبان سے تعلق ہے۔ یہ ایک انسانی رویہ ہے اور یہ شیطان کی طرح مختلف روپ دھارتا ہے اور کینسر کی طرح سرایت کرتا ہے معاشرے میں۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ اقلیتوں کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ عیسائی برادری کا تحفظ امت محمدی پر فرض ہے۔ گھر، معاشرے، مملکت کے دشمن کا پہلا وار نظام انصاف پر ہوتا ہے۔ اقلیتوں کے جان و مال پر کوئی بھی شخص گروہ حملہ آور ہوگا تو ریاست مظلوم کے ساتھ ہوگی۔ دشمن ہمیں اپنے لوگوں کا تحفظ کرنے میں تیار پائیں گے۔ دشمن کو انصاف کے کٹہرے میں لا کھڑا کریں گے۔ میں آپ کو صرف یہ ایشور کرانا چاہتا ہوں کہ کبھی نہ صرف کرسچن مائنورٹی کے ساتھ، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ پارسی ہوں، چاہے وہ احمدی ہوں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی مائنورٹیز سے بلانگ کرتے ہوں، اگر ان کی جان و مال پہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی گروہ حملہ آور ہوگا تو ریاست اور ریاست کے قوانین کو آپ مظلوم کے ساتھ پائیں گے، ظالم کے ساتھ نہیں پائیں گے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ جراوالا واقعے کے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایک متاثرہ خاندان تک امدادی چیک پہنچائیں گے۔ تمام گرجا گھروں کو پہلے سے بہتر حالت میں بحال کریں گے۔ متاثرین کی بحالی کا کام ہفتوں نہیں، دنوں میں ہوگا۔ گورنر بلیغ الرحمان نے بھی کرسچن بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ کہا، جراوالا میں پیش آنے والا واقعہ افسوسناک ہے۔ متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اتنے لوگ ہیں جو اس چیز میں ملوث ہیں، ان کو کسی کو نہ چھوڑیں، اور یہ انسٹرکشن ہم پولیس کو بھی دے رہے تھے، ایڈمنسٹریشن کو بھی دے رہے تھے، اور یہی کوشش پولیس والے کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہوپ فلی اسی طرح کیا ہے، اور ابھی تک تقریباً جو مین مرکزی کردار ہیں وہ تقریباً سارے اریسٹ ہو چکے ہیں، اور جو کچھ لوگ باقی ہیں ان کو ویڈیوز کی مدد سے یہ لوگ ٹریس کر رہے ہیں۔ اب آ جاتی ہے بات چرچز کی، جو جلے وہ یہ ہمارا وعدہ ہے کہ جو چرچ، چاہے اس کا تھوڑا سا نقصان ہے، چاہے اس کا زیادہ نقصان ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر حالت میں آپ کو ہینڈ اوور کریں گے۔ یہ ایک بدنما داغ رہے گا کہ ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عبادت گاہیں بہت قابل احترام ہیں، گھر بہت احترام ہیں، قابل احترام ہیں، اور لوگوں کے جذبات اور دل اور انسانی قدریں بہت قابل احترام ہیں، اور ہمیں ایک دوسرے کا انسانیت کے ناطے، پاکستانیت کے ناطے بہت سی اور وجوہات ہیں کہ یہ قدر اور یہ احترام جاری رکھنا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ عیسیٰ نگری چرچ بھی گئے۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی اور گورنر بلیغ الرحمان بھی ہمراہ تھے۔ چیف سیکرٹری زاہد اختر اور آئی جی عثمان انور بھی موجود تھے۔ نگراں وزیر اعظم نے چرچ کی تعمیر نو کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے چرچز کی بحالی پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے پادریوں اور مسیحی برادری سے ملاقات کی اور گرجا گھروں کی بہترین حالت میں بحالی کی یقین دہانی کرائی۔ ساتھی رپورٹر فصیل نقوی، علی نارو اور کیمرہ ٹیم کے ہمراہ طیب مقبول، سٹی 41 جراوالا۔ مسیحی برادری سے اظہار یکجہتی، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی جراوالا آمد۔ چمڑا منڈی میں نظر آتش کیے گئے گرجا گھروں کا دورہ۔ مسیحی برادری سے اظہار افسوس کیا گیا۔ مسیحی برادری سے اظہار یکجہتی کے لیے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے جڑوالا کا دورہ کیا۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ پاکستان جس نہج پر پہنچ چکا ہے، ہم سب کو سنجیدگی کے ساتھ سوچنا پڑے گا۔ جو کچھ جڑوالا میں ہوا افسوسناک ہے۔ حقائق سامنے لانے کے لیے قرآن مجید کی بے حرمتی کے حوالے سے شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کا اس طرح کا رد عمل انتہائی افسوسناک تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ ایک عرصے سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے۔ جڑوالا میں ہونے والا یہ واقعہ جس کی پوری قوم نے مذمت کی ہے، ہم اس کی شدید مخالف ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی مجرم ہیں ان کو
करारवा की सजा दी जाए। अमीर जीआई सिराजुल हक का मजीद कहना था कि जमात इस्लामी हमेशा अमन भाईचारे का दर्स देती है, कभी भी इश्तियाल अंगेजी को फरोग नहीं दिया। मसीही बरादरी के नुकसान के हवाले से इनका कहना था कि जमात इस्लामी का फलाही अदारा अल खिदमत मुतासरा गिरजाघरों की और घरों की भरपूर इमदाद करेगा। जिन बहनों का जहेज जलाया गया, जमात इस्लामी इन्हें इससे भी बेहतर जहेज मुहैया करेगी। ये वाकया कोई आनन फानन तो नहीं हुआ, न चंद सेकंड्स में ये वाकया हुआ है। तो जब माप जमा हो रहा था और फिर वो हरकत में और जुलूस की शक्ल में आ गए, तो आखिर इंतजामिया ने उनको बरवकत क्यों नहीं रोका। जिला फैसलाबाद और जड़ावाला के अमीर महबूबुल जमान भट्ट और राना सुल्तान महमूद भी सिराजुल हक के हमरा थे। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का 7वां इजलास। दौरान मुलाजमत इंतकाल करने वाले मुलाजमीन के अहले खाना को खुसूसी पैकेज देने का उसूली फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का 7वां इजलास हुआ। दौरान मुलाजमत इंतकाल करने वाले मुलाजमीन के अहले खाना को खुसूसी पैकेज देने का फैसला किया गया। वज़ीर आला ने वफात पाने वाले मुलाजमीन के अहले खाना को 10 दिन में इमदादी रकूम अदा करने का हुक्म दिया। इजलास में फैसलाबाद के इलाके निशाताबाद ओवरहेड ब्रिज से गढ़वाला रोड की तामीर और मुरम्मत और कुशादा करने की मंजूरी भी दी गई। फैसलाबाद की वाटर सैनिटेशन एजेंसी में बेहतरी के लिए फ्रांसीसी एजेंसी फॉर डेवलपमेंट से मुआवनत ली जाएगी। प्राइम मिनिस्टर नेशनल प्रोग्राम के तहत पंजाब में ज़रई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन की मंजूरी भी दी गई। फ्लड प्रोटेक्शन सेक्टर प्रोजेक्ट 3 को सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2023 से 24 में शामिल किया जाएगा। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत चकवाल और दीगर मुकामात पर स्मॉल डैम्स के लिए फंड्स के असर नौ इजरा की मंजूरी दी गई। इजलास में सूबाई वज़रा SM तनवीर, मंसूर कादिर, आमिर बीर, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, मुतालिका महकमों के सेक्रेटरीज और अफसरान ने शिरकत की। फैसलाबाद के 63 हायर सेकेंडरी स्कूल्स में 400 से ज्यादा स्टाफ की कमी, स्कूलों में दाखिला मुहिम मुतासर होने लगा। स्कूल सरबराहान कहते हैं असातिज़ा पूरे नहीं होंगे तो दाखिले कैसे बढ़ाएंगे। देखते हैं जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट। महकमा तालीम में भर्तियां ना होने से स्कूलों में असातिज़ा की शदीद कमी हो गई। फैसलाबाद के 63 हायर सेकेंडरी स्कूल्स में 400 से जायद असातिज़ा की सीटें खाली हैं, जिसके बायस स्कूल्स में इंटरमीडिएट क्लासेस की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। इस वक्त जो है वो 60 से 70% जो है वो सीट्स खाली हैं और बहुत सारे तालीमी इदारे हायर सेकेंडरी स्कूल ऐसे हैं जो कि बिल्कुल खाली हैं और बहुत सारे अदारों में सिंगल टीचर भी मौजूद नहीं है, जहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल की क्लासेस तो मौजूद हैं लेकिन टीचर नहीं है। मेरे अपने स्कूल में सिर्फ 3 टीचर हैं। गवर्नमेंट MC हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड फैसलाबाद के प्रिंसिपल राव मोहम्मद इकबाल कहते हैं 300 बच्चे फर्स्ट ईयर में दाखिल हुए। हायर सेकेंडरी सेक्शन में सिर्फ 3 टीचर मौजूद हैं। हायर सेकेंडरी स्कूलों में दाखिला मुहिम मुतासिर होने लगी है। हुकूमत वक्त से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें स्टाफ दिया जाए और जल्द से जल्द भर्ती की जाए ताकि ये गरीबों के बच्चे जो हैं वो जो अफोर्ड नहीं कर पाते प्राइवेट सेक्टर को, वो बच्चे जो हैं वो यहाँ पे आके सस्ती तालीम जो है वो हासिल कर पाएँ। अगर ये नहीं होगा तो हम कैसे टारगेट अचीव करेंगे। हमारे लिए भी बहुत सारी मुश्किलात हैं। हम प्राइवेट सेक्टर से जब बच्चों को टीचर को रखते हैं तो हमारे पास इतने फंड्स नहीं होते कि हम वो फंड जो है वो उनको प्रोवाइड कर सकें, उनको तनख्वाहें दे सकें। स्कूल सरबराहान कहते हैं हुकूमत हायर सेकेंडरी क्लासेस के लिए असातिज़ा की कमी पूरी करे। स्कूलों में असातिज़ा की कमी से अभी तक 50% दाखिला टारगेट भी पूरा नहीं हो सका। कैमरामैन कमर बूटा के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। नामुमकिन हुआ इलाज, पेन किलर इंजेक्शन, शुगर अद्वियात, इनहेलर और दीगर की कीमतों में इजाफा, गरीब मरीजों के लिए मुश्किलात का पैगाम, इलाज की सहूलत से महरूम होने लगे। हाय रे महंगाई गरीब की दोहाई, महंगी दवाओं ने गरीब के लिए इलाज भी मुश्किल बना दिया। अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे के बाद अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा हो गया। पेन किलर इंजेक्शन, शुगर अद्वियात, इनहेलर समेत मुतअद्दिद अद्वियात की कीमतें बढ़ गईं। महंगी अद्वियात के सबब मरीज इलाज मुआलजे की सहूलत से महरूम होने लगे, जबकि सरकारी अस्पतालों में अद्वियात का शदीद फुकदान है। हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि हमारा कुछ वो सोचें। हम बहुत निहायत गरीब आदमी हैं, हम डॉक्टर की बात सुने और डॉक्टर हमारी बात नहीं सुनता। उसके बावजूद बहुत दूर से आते हैं, इतने तंग हो चुके हैं, वो दवाई कहाँ से लें। हम गरीब आदमी, हम पेट अपना भर के उसका गुजारा करें, बच्चों का गुजारा करें या फिर हम अपना इलाज करवाएं।
जिगर के मर्ज के लिए इस्तेमाल होने वाला सिरप 250 से बढ़कर 500 रुपए का हो गया, जबकि मेथोकबाल इंजेक्शन 1250 से 1600 रुपए का हो गया। शुगर के मर्ज में इस्तेमाल होने वाली वेलोन गोली भी 190 से बढ़कर 320 रुपए पर पहुंच गई। शहरी हुकूमती इकदामात पर बरस पड़े। ये अस्पताल में कोई भी मेडिसिन हमें नहीं मिल रही है, कोई एक आध गोली देते हैं या फिर कोई ड्राफर है तो वो दे देते हैं। जो भी मेडिसिन है ना वो 22 से लिख कर देते हैं और कहते हैं कि लेके आएं और दिखाएं, किसी के पास हैं या नहीं है, पहले इनको ला के दिखाएं फिर घर जाएं। मरीज इलाज मुआवजे के अखराजात बर्दाश्त करें या घर का राशन पूरा करें। शहरी कहते हैं हुकूमत गरीब के हाल पर रहम करे और सस्ती अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाए। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। गरीब के लिए घर बनाना मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल। सरिया 10,000 रुपए फी टन महंगा 2,80,000 का हो गया। कीमत बढ़ने से ताजर और खरीदार दोनों परेशान हैं। सरिये की कीमत बढ़ने पर एक जानिब इस कारोबार से जुड़े ताजरों ने नाराजगी का इजहार किया तो दूसरी तरफ खरीदार भी बिलबला उठे। कहते हैं कीमतें बढ़ने से आम आदमी को घर बनाने का ख्वाब भी अब महंगा पड़ेगा। रेट तो बहुत ज्यादा है, रेट तो हाथ नहीं लग रहे, इतने ज्यादा हो गए हैं। हालांकि इसका रेट बहुत कम होना चाहिए क्योंकि अगस्त का जो महीना होता है बड़ा स्लो होता है, इसमें कारोबार बिल्कुल बंद होते हैं सारे। दुकानदारों का कहना था कि सरिये की सेल पहले ही 60% कम हो गई है। डॉलर के बढ़ते भाव के बायस लोहे की कीमत में मजीद बढ़ने का खदशा है। दूसरी जानिब खरीदार कहते हैं अगस्त में हर साल कीमत कम होती है मगर इस बार खिलाफ तवक्को बढ़ा दी गई है। तामीराती शोबे में मजदूर, प्रॉपर्टी डीलर्स, भट्टों और लकड़ी का काम करने वालों का रोजगार भी वाबस्ता होता है। बिल्डिंग मटेरियल महंगा होने से दर्जनों शोबे मुतासर होंगे। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। रवा माली साल रिफंड्स के हवाले से टैक्स गुजारों के लिए बेहतर साबित होने लगा। एक माह में टैक्स गुजारों को रिफंड्स अदायगियों में गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 83% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। टैक्स गुजारों को 5 अरब 80 करोड़ 20 लाख रुपए जारी कर दिए गए। गुज़िश्ता बरस इस अरसे में 3 अरब 16 करोड़ 80 लाख की अदायगियाँ हुई। एफबीआर हुकाम के मुताबिक बेशतर अदायगियाँ सेल्स टैक्स रिफंड्स की मद में की गईं। टैक्स गुजारों को सेल्स टैक्स रिफंड्स अदायगियाँ 72 घंटों में की जा रही हैं। दो कारोबारी अफराद के लेन देन के मामले पर सालिस मुबैना तौर पर अगवा। थाना निशाताबाद के इलाके में शहरी के मुबैना अगवा पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज। शहरियों ने ड्राइवर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं उस्मान हैदर से। उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना निशाताबाद के इलाका मोटरवे सिटी के करीब से मोहम्मद बशीर नामी शहरी के अगवा का ये मामला है जिस पर इलाका में किंग जो है वो इस वक्त ड्राइवर रोड पर सरापा एहतजाज है, जिनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि पुलिस जो है वो काबे खरगोशा के मजे लेती हुई दिखाई दे रही है। लोगों को जो है वो यूं ही मुल्ज़मान गिरफ्तार करते हैं या अगवा करते हैं और नामालूम मकामात पर जो है वो मुंतकिल कर देते हैं। मेरे साथ यहाँ पे इस वक्त हाजी मोहम्मद बशीर साहब मौजूद हैं जिन्हें अब से कुछ देर पहले मुबैना तौर पर अगवा किया गया था। इनसे हम बात करते जानते हैं कि ये सारा मामला है क्या। सर, ये सारा मामला है क्या, इस हवाले से बताइए। सर, ये मुझे चौधरी नीब साहब और राना लियाज साहब ने अपने कारोबारी मामला का मसला था सालिस मुकर्रर किया था। उसमें मैंने छानबीन करके 10-15 दिन मैंने अपनी तसल्ली के साथ वो फैसला जो लिखा है लिख के फैसला कल उनके सुपुर्द कर दिया है। तो कल से मुझे ये फ़ोन कर रहे थे। आज मैं जब घर से निकला हूँ तो मुझे 6 बंदों ने उधर से उठाया है। हाजी नीब साहब भी साथ थे और मानव साहब थे साथ और 4 बंदे और साथ थे। उन्हों के पास गन्ने थी, बकाया के पास पिस्टल थे। तो ये मुझे गाड़ी में डाल के नामालूम मुकाम पर ले गए हैं। मेरी गाड़ी भी वो खुद चला के ले गए एक बंदा। उधर से मुझे जाके मुझे इन्होंने ज़दोकोब किया और उधर ज़दोकोब करने के बाद ये मेरा घर से ना मुझे कहने लगे जो असल स्टाफ है ना करने वाला वो मंगाओ इधर। मुझे मारते रहे, तब तक मारते रहे जब तक मैंने फ़ोन करके वो इनको मंगवा के नहीं दे रही है। मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया, इन्होंने इधर से बंदा भेजा, वो फिर करके ले आया था वसूल। इन्होंने मुझे 3-4 कागज़ों पे ये मेरा अंगूठे दस्तखत करवाए हैं कि ये आप लिख के देंगे, ये फैसला गलत है। ये फैसला मैं प्रेशर में मैंने किया है। तो 3-4 कागज़ और हैं, वहाँ मुझे वाइट लिख के उन पर मुझे ये साइन उठा कर ज़बरदस्ती मुझे जब मैं बेहोश हो गया हूँ, एक बंदा मेरे साथ आया गाड़ी मेरी में, वो इधर ड्राइवर रोड पे मुझे इधर गाड़ी खड़ी करके भाग गया है। जी बिल्कुल, यहाँ पे मौजूद मोहम्मद बशीर का ये कहना है कि 2 पार्टियों के आपस का लेन देन का मामला है जिस पर इन्हें सालिस मुकर्रर किया गया था।
जिस पार्टी के खिलाफ फैसला आया उस पार्टी की जानिब से जो है वो इन्हें मुबैना तौर पर अगवा किया गया और बाद अज़ां वहाँ पे नामालूम मुकाम पर जो है वो इन्हें ज़दकोब करके कुछ कागजात पर दस्तखत करवाए गए और निशान अंगूठा भी लगवाया गया। इस हवाले से यहाँ पे मौजूद ये लोग जो हैं इनका ये कहना है कि ये खदशा है कि वो मुल्ज़मान अपनी मनचाही तहरीर वहाँ पे लिख कर जो है वो फैसले को बदल सकते हैं। तो इस हवाले से यहाँ पे उस्मान हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जंग के डीसी अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी के फैसले पर अमल शुरू। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पार्किंग स्टैंड पर ओवर चार्जिंग की शिकायत पर सख्त एक्शन। पार्किंग स्टैंड का ठेका मंसूख करके पार्किंग फ्री कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग आने वाले मरीजों के लिए अच्छी खबर। अस्पताल में ओवर चार्जिंग की शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर ने पार्किंग का ठेका मंसूख कर दिया, जिसके बाद अब अस्पताल में पार्किंग के लिए कोई फीस वसूल नहीं की जाती। मरीजों के साथ आए लवाहिकीन ने डिप्टी कमिश्नर के इक़दामात को सराहा और उनका शुक्रिया अदा किया। तलबा की मौजें खत्म, पढ़ाई शुरू। मौसम गर्मा की छुट्टियों के बाद तालीमी इदारे खुल गए। स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां दोबारा शुरू। स्कूल सरबराहान और असातिज़ा ने बच्चों को खुशामदीद कहा। जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में मौसम गर्मा की छुट्टियों के बाद तालीमी इदारे खुल गए। बच्चों की स्कूल्स में आमद। स्कूल सरबराहान और असातिज़ा ने बच्चों को खुशामदीद कहा। स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां दोबारा शुरू हो गईं। तलबा कहते हैं लंबे अरसे के बाद दोस्तों से मुलाकात हुई। छुट्टियों में पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाई थी, अब रेगुलर क्लासेस में अच्छी पढ़ाई करेंगे। स्कूल में आज मेरा पहला दिन है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। काफी देर से मैं स्कूल नहीं आया तो स्कूल की याद आ रही थी, दोस्तों की याद आ रही थी। आज आके मुझे खुशी हो रही है, अब स्कूल के सामने खड़ा हूँ और मेरा दिल खुश है। पढ़ाई के मुतालिक है, पढ़ाई में सारों ने माशाल्लाह सब ने पढ़ाई की है, चैप्टर सारे याद किए, हम लोगों ने सारी पढ़ाई की है। हम लोग छुट्टियां गुजारी, हम लोग सवात मरी वगैरह गए, हम लोगों ने वहाँ बहुत एंजॉय किया। एंजॉय के बाद हम स्कूल आ गए, पढ़ेंगे, दिल लगा के पढ़ना है। अब हम लोगों ने अच्छे नंबर ला के पास होंगे। प्रिंसिपल एमसी हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड राव मोहम्मद इकबाल कहते हैं स्कूलों में छुट्टियों के दौरान तमाम सहूलियात अपडेट की हैं ताकि बच्चों को बेहतर माहौल मैसर आए और वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें। जब बच्चे वापस आते हैं तो एक अट्रैक्टिव माहौल देना, एक हेल्दी एनवायरनमेंट देना, लर्निंग एनवायरनमेंट देना, ये हम पे वाजिब है। हमने वो एनवायरनमेंट इनको दिया है, एक अट्रैक्शन पैदा की है बच्चों को। सीईओ एजुकेशन काशिफ ज़िया ने भी मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा किया। पहले दिन हाजिरी इंतजाम चेक किए। बच्चों को एक हफ्ते तक छुट्टियों का काम जमा करवाने की हिदायत कर दी गई। तालीमी इदारों में छुट्टियों के बाद बच्चों से इम्तिहान भी लिया जाएगा। कैमरामैन कमर बूटा के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41, फैसलाबाद। जंग के गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव मॉडल हाई स्कूल गोजा रोड में शजरकारी मुहिम। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मोहम्मद रमजान ने सेव ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के ताउन से पौधे लगाए। पंजाब हुकूमत शजरकारी पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। इसी सिलसिले में गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव मॉडल हाई स्कूल गोजा रोड पे शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद रमजान ने सेव ह्यूमैनिटी के ताउन से पौधे लगाए। डिप्टी डीईओ मोहम्मद रमजान ने बताया कि सेव ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की जानिब से 5000 पौधों का अतिया दिया गया। पौधे लगाकर माहौल को सरसब्ज़ शादाब रखा जा सकता है। इस मौके पर सेव ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के नुमाइंदे मोहम्मद तलहा आसिफ ने कहा कि शहर को सरसब्ज़ बनाने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। शजरकारी मुहिम के मौके पर स्कूल का स्टाफ भी मौजूद था। फेस्को में बिजली कनेक्शन ख्वाब बनने लगा। किसी का मीटर नहीं लगा तो कोई डिमांड नोटिस जमा करवा के ट्रांसफार्मर कनेक्शन से महरूम है। 10,000 से ज़्यादा अदाशुदा डिमांड नोटिस पर कनेक्शन ना लग सके, जबकि बिलों की दुरुस्तगी, तौसी और इक़साद की वेबसाइट बंद होने से सारिफीन रुल गए। फेस्को में बिजली कनेक्शन ख्वाब बनने लगा। किसी का मीटर नहीं लगा तो कोई डिमांड नोटिस जमा करवा के ट्रांसफार्मर कनेक्शन से महरूम है। 10,000 से ज़्यादा अदाशुदा डिमांड नोटिस पर कनेक्शन ना लग सके। सार्फिन सब डिवीजन दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। सार्फिन ने फेस्को अमले पर बगैर पैसों के काम न करने का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं मीटर बर वक्त लगवाना कड़ा इम्तहान बन चुका है। फेस्को अदाशुदा डिमांड नोटिस पर कनेक्शन बर वक्त लगाए। फेस्को का ऑनलाइन सिस्टम सार्फिन पर भारी पड़ गया। फेस्को की बिलों की दुरुस्तगी, तौसी और इक़साद की वेबसाइट बंद। सार्फिन बिजली के बिलों में तौसी, दुरुस्तगी और इक़साद के लिए रुल गए। वेबसाइट बंद होने से बिजली के बिलों की इक़साद, दुरुस्तगी और तौसी का अमल मुकम्मल रुक गया। सार्फिन फेस्को हुकाम पर फट पड़े। कहते हैं बिलों में तौसी के लिए खुआर हो रही है, इक़साद की सहूलत मैसर है, न बिल दुरुस्त किए जा रहे हैं। सार्फिन ने हुकाम से फेस्को ऑनलाइन वेबसाइट जल्द बहाल करने का मुतालबा किया है। तोबा टेक्सिंग के चक 331 में मुकर्ररा तारीख पर बिजली के मीटर की रीडिंग न लेने पर फेस्को के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने फेस्को के खिलाफ नारेबाजी की। मुकर्ररा तारीख से 11 रोज बाद मीटर रीडिंग लेने पर अहले इलाका सीख पा। कहते हैं फेस्को मुलाजमीन का जालिमाना रवैया काबिल कबूल नहीं। एक यूनिट जायद चलने पर तमाम यूनिट की कीमत 3 गुना बढ़ जाती है। मुजाहिरीन का कहना था कि आला हुकाम हमारे हालात पर रहम करें, मुलाजमीन को मीटर की रीडिंग मुकर्ररा तारीख पर लेने का पाबंद किया जाए।
कैंट कमिश्नर पंजाब ने 42 शुगर मिल्स को नोटिस जारी कर दिया। शुगर मिल से चीनी के स्टॉक की तफसीलात मांग ली गईं। उधर टोबा और चिन्योट में खाद की कंट्रोल रेट पर अदम दस्तयाबी पर महकमा ज़राअत इन एक्शन। कैंट कमिश्नर पंजाब ने 42 शुगर मिल्स को नोटिस जारी कर दिए। शुगर मिल्स से चीनी के स्टॉक की तफसीलात मांग ली गई। कैंट कमिश्नर ने डीलर्स को फरोख्त शुदा स्टॉक की तफसील भी तलब कर ली। गलत मालूमात देने वाली शुगर मिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, जबकि चीनी का स्टॉक जखीरा करने वाले डीलर्स के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। टोबा टेक्सिंग में खाद की कंट्रोल रेट पर अदम दस्तयाबी पर महकमा ज़राअत इन एक्शन। ब्लैक मार्केटिंग और गिरां फरोशी पर खाद डीलर्स के खिलाफ घेरा तंग। 6 डीलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 1 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना कर दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद शकील कहते हैं, रोजाना की बुनियादों पर इंस्पेक्शन जारी है। खाद सरकारी रेट पर फरोख्त न करने वाले और अवाम को लूटने वाले डीलर्स किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सरकारी ट्रेड लिस्ट के मुताबिक खाद न फरोख्त करने वाले डीलर्स के खिलाफ किसान अपनी शिकायत मुतल्लिका दफातर में दर्ज कराएं। महकमा ज़राअत चिन्योट खाद की ब्लैक मार्केटिंग और गिरां फरोशों के खिलाफ मुतहर्रिक ज़रई अफसरान की गला मंडी हरसा शेख ठट्ठी बाला राजा में कार्रवाइयां। हुक्काम ने दौरान कार्रवाई यूरिया खाद के सैकड़ों बैग जब्त कर लिए। असिस्टेंट कंट्रोलर फर्टिलाइजर अमजद गोरसी के मुताबिक चारों गोदामों को सील करके मुकदमे दर्ज करवा दिए गए। उनका कहना था, यूरिया खाद की ब्लैक मार्केटिंग और गिरां फरोशी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फैसलाबाद में बगैर लाइसेंस और ममनुआ अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। ड्रग कोर्ट ने 9 मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 6,34,000 रुपए जुर्माने का हुक्म सुना दिया। दूसरी जानिब पंजाब बार काउंसिल की अपील पर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार की हड़ताल। वकीलान ने अदालती कार्रवाई का मुकम्मल बॉयकॉट किया और ममनुआ अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। ड्रग कोर्ट ने 9 मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 6,34,000 रुपए जुर्माने का हुक्म सुना दिया। चेयरमैन ड्रग कोर्ट सैयद खालिद जावेद बुखारी ने सजा का हुक्म सुनाया। बगैर लाइसेंस और ममनुआ अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ चालान अदालत में पेश किया गया था। पंजाब बार काउंसिल की अपील पर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार की हड़ताल। वकीला ने अदालती कार्रवाई का मुकम्मल बॉयकॉट किया। वकीला की हड़ताल के बाद सालीन को मुश्किलात का सामना रहा। पंजाब बार के एलामिये के मुताबिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सील डीड खत्म करके ई रजिस्ट्री सिस्टम मुतारिफ कराया है। सील डीड सिस्टम में हजारों वकला बतौर लोकल कमीशन पेश होते थे। ई रजिस्ट्री सिस्टम मुतारिफ कराना वकला के मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट और हुकूमत फौरी नोटिफिकेशन वापस ले। फैसलाबाद के सिविल जजेस की मौसम गर्मा की तातीलात। सिविल जजेस की छुट्टियां 31 अगस्त तक जारी रहेंगी। ड्यूटी जजेस का छठा ग्रुप 22 अगस्त से जिम्मेदारियां अंजाम देगा। सिविल जज नौशीन उमैर मार्किंग और दफा 30 के तमाम क्रिमिनल केसेस देखेंगी। सिविल जज बिलाल हसन क्लास 2 और 3 का सिविल वर्क निपटाएंगे। सिविल जज अली बिलाल मदनी ग्रुप ए में शामिल पुलिस स्टेशन के क्रिमिनल उमूर की ड्यूटी जज होंगे। सिविल जज जीशान राना पुलिस स्टेशन ग्रुप बी और सिविल जज शहरोज शाहीन रांझा ग्रुप सी के उमूर देखेंगे। कौमी खेल हॉकी मुसलसल नजरअंदाज। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने फैसलाबाद हॉकी स्टेडियम को लावारिस छोड़ दिया। हॉकी स्टेडियम भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। फंड्स जारी होने के बावजूद ठेकेदार और अमला हॉकी स्टेडियम से गायब। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की नाअहली से फैसलाबाद में कौमी खेल हॉकी लावारिस हो गया। हॉकी स्टेडियम बूथ बंगले के मनाजिर पेश करने लगा। एस्ट्रो ट्रॉफी हार तो ली, लेकिन फंड जारी होने के बावजूद अभी तक लगाई ना जा सकी। हॉकी से वाबस्ता अफराद कहते हैं, करोड़ों का फंड जारी होने के बावजूद ठेकेदार और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का अमला हॉकी स्टेडियम से गायब है। ठेकेदार हॉकी स्टेडियम में सामान छोड़कर वापस नहीं आया। हॉकी जो पाकिस्तान का कौमी खेल है और कौमी होने के बावजूद आप ये इसका हाल देख लें क्या किया हुआ। यहाँ ना बंदा नजर आ रहा, ना बंदे की जात नजर आ रही है। इनको चाहिए कि बाहर यहाँ पे कम से कम एक टिकट लगा दें ताकि लोग हॉकी के बजाय भूत बंगला देखना शुरू कर दें। ठेकेदार को उन्होंने पैसे दिए लेकिन वो खा गए, घर बैठे हुए हैं अपने और यहाँ काम नहीं करवा रहे। हालांकि मशीनरी पड़ी है लेकिन वो यहाँ खुद नजर नहीं आ रहे, ना जो काम करवा रहे वो नजर आ रहे या जो जिन्होंने करना है ना वो नजर आ रहे हैं। खिलाड़ी कहते हैं, कौमी खेल को तवज्जो की अशद जरूरत है। पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर को कौमी खेल से महरूम किया जा रहा है। कैमरामैन ईमान के साथ अली रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने ख़त्म को पहुंचता है। देखते रहिए सिटी 41।